Hello everyone, good evening. Here is Manisha Tandon. Welcome back to our YouTube channel Gills Mentor e-learning platform. To get all the recent notification, right now subscribe YouTube channel Gills Mentor and do not forget to press the bell icon. हाँ जी गाइस, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ FSI, PSSSB, PSCB ਕਲਰਕ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, RRB, NTPC, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਗਾਈਜ਼। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਯੈਸ ਗਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 350 MCQs, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ MCQ ਨੇ, 5 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਕੋਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਯੈਸ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ CBDT extended the deadline to link PAN with Aadhaar by 6 months from March 31st to what date? हाँ जी गाइज, CBDT ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ डी तो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है गाइज। ये क्या गया है, पैन कार्ड नूं आधार कार्ड नाल लिंक करन दी जिहड़ी डेडलाइन है उन्होंने एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, 6 मंथ फ्रॉम, ठीक है। तुसीं डेट दसनी है। हाँ जी गाइज, सही आंसर देने की कोशिश करो, की होगा आंसर। यस, तो गाइज इसका सही आंसर है ए, सितंबर 30 सितंबर 2019, ठीक है गाइज। देखो ये कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे। दी CBDT एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू लिंक पैन विद आधार बाय 6 मंथ फ्रॉम 31st टू सितंबर 30 2019, ठीक है। 6 मंथ का टाइम दिता गया है गाइज। गाइज जिन्ने भी आप लास्ट विच क्वेश्चन के एंड विच एवें ही डिटेल दी होएगी, तुसीं इहनूं ध्यान नाल पढ़ना है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स टू मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा टू क्रिएट द थर्ड लार्जेस्ट लैंडर ऑफ द कंट्री? हाँ जी गाइज, ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़नी है, दैन आंसर देने की कोशिश करना है गाइज। ये स्टेटमेंट विच की किया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तुसी 2 बैंकों के नाम दसने ने। नीचे ऑप्शन विच 2 बैंकों के नाम दिते हुए ने, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा नाल किन्नू मिला के, किहड़े बैंकों नूं दोवां नूं मिला के किद्दां दा बैंक बनाया गया है। कंट्री का जिहड़ा थर्ड लार्जेस्ट की हो गया साडे लई, थर्ड लैंडर मतलब हुंदा है गाइज ऋणदाता, ठीक है, ऋणदाता, समझदे हो ना। यस, तो इसका सही आंसर है गाइज, सैकेंड का सही आंसर देने की कोशिश करो, बीजे बैंक एंड देना बैंक। बीजे बैंक एंड देना बैंक गाइज, बीजे बैंक एंड देना बैंक नूं मिला के बड़ौदा बैंक विच किदां दा मतलब थर्ड लार्जेस्ट बैंक क्रिएट किया गया है कंट्री का, जोड़ा कि साडे लई एक ऋणदाता बन चुकी है, ठीक है गाइज। दा सही देखो नीचे डिटेल दी हुई है। इन द फर्स्ट 3 वे, ठीक है, बीजे बैंक एंड देना बैंक मर्ज विद द बैंक ऑफ बड़ौदा टू क्रिएट ए थर्ड लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द कंट्री, ठीक है गाइज, ध्यान नाल पढ़ना है। नैक्सट चलते हैं। यस गाइज, थर्ड क्वेश्चन है,
ਨੇਮ ਦੀ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੂ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡ ਚੀਫ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗਾਈਜ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗਾਈਜ਼। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਥਰਡ ਦਾ? ਯੈਸ, NS ਢਿੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ NS ਢਿੱਲੋਂ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼। ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ NS ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਜ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਚੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਟੂ Maharatna public sector unit have inked a memorandum of understanding for cooperation in the development of solar power project। हाँ जी गाइस, सही आंसर देने की कोशिश करो। पहले स्टेटमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। गाइस ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, MOU, ਠੀਕ ਹੈ। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 और मोर पार्टीज़ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗਾਈਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ फोर्थ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ A, ठीक है। गेल इंडिया लिमिटेड एंड भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, ठीक है गाइस। एक्सप्लेनेशन देख लेंदे हैं जी। महारत्न पब्लिक सैक्टर यूनिट्स गेल इंडिया लिमिटेड एंड भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, ਇਹਦੀ फुल फॉर्म याद रखनी है, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। हैव इंक टू मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉरपोरेशन इन द डिवेलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्रोजैक्ट, ठीक है। इनू ऑफर किया गया है सोलर पावर प्रोजैक्ट ते एक समझौता किया गया दोनों कंपनियां, ठीक है। नैक्सट चलते हैं गाइज ये भी पूछ सकते हैं ये देखो सोलर पावर पॉइंट किन्ना इंडिया हैज सैट ए टारगेट टू अचीव ए 100 GW, है ना, गीगावाट वाट, ठीक है, सोलर पावर ऑफ 2022 सो दैट द सिटीजन कैन, एक टारगेट रखा गया है गाइस ये अचीव करना है कि आप इन्नी ही पावर मतलब वाट विच आप बिजली बनाते हैं ना, WAT तुहानू पता होना चाहिए पावर ऑफ यदि यूनिट की होंगी है वाट, है ना, कि इलैक्ट्रीसिटी दी, है ना। दैन चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते। अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ साउथ कॉरपोरेशन इंडिया हैज़ ऑफर $1 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू बोलीविया फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजैक्ट्स। ध्यान नाल स्टेटमेंट देखो गाइज, पंजवें आंसर 5th क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। इसका सही आंसर है $100 मिलियन, ठीक है गाइज। साउथ कॉरपोरेशन इंडिया ने ऑफर किया किन्ने मतलब किन्ने $1 मिलियन नू जोड़ा कि आप फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजैक्ट क्रिएट कर सकिए, है ना, ठीक है। तो यदा सही आंसर की सीगा $100। देखो डिस्क्रिप्शन देखते हैं आप। अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द साउथ कॉरपोरेशन इंडिया हैज़ ऑफर ए $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू वॉल्विया फाइनेंशिंग डेवलपमेंट प्रोजैक्ट, ठीक है। ये 100 मैंबर ने स्ट्रॉन्ग ऑफिशियली डिक्लेरेटिव प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद। देखो रामनाथ कोविंद की है साडा प्रेजिडेंट है। क्वेश्चन विचों आंसर विचों ही क्वेश्चन और सानू पता चल गया, ठीक है, ठीक है गाइज। दिस डिस्कशन फोकस ऑन द पोलिटिकल इकनॉमिकल कल्चरल इशू, ठीक है, स्पेस माइनिंग IT फार्मेटिकल, ठीक है, मैडिसन के रिलेटेड वो किया गया प्रोजैक्ट विच डिस्कशनस। नैक्सट चलते हैं गाइज 6th क्वेश्चन ते। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी for 4G availability released by open signal, which city has the highest 4G availability of 95.3%। हाँ जी गाइस, सही आंसर देने की कोशिश करो। ये की गया है 6th क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो, कमेंट दे के दसो अगर तुहानू आंदा है तो, ठीक है, ठीक है। ओपन सिग्नल की अकॉर्डिंग द रिपोर्ट नाल एक हॉटेस्ट सिटी बन गई है साड़ी जी कि 4G अवेलेबिलिटी मतलब कनैक्टिविटी दसे करता है ना साड़ी 4G अवेलेबिलिटी 3G 4G
5G है ना, ये साडियां की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ इंटरनेट ਦੀਆਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟੈਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 4G ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 95.3%। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ A, दैट इज धनबाद। ठीक है, नैक्सट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे थोड़ी जी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ओपन सिग्नल होटेस्ट सिटी फॉर द 4G अवेलेबिलिटी रिलीज बाय ओपन सिग्नल धनबाद विच इज आल्सो नोन एज द कोल कैपिटल ऑफ द इंडिया हैज़ हाईएस्ट 4G अवेलेबिलिटी 95.3% फॉलो बाय रांची एंड विच हैज़ 95 4G अवेलेबिलिटी है ना गाइज। ठीक है, ये the report relevant to availability across the top 50 Indian cities, both Ranchi and Dhanbad are the two cities are Jharkhand and they are the only two cities to have over 95 4G coverage। ठीक है गाइज, ध्यान नाल देखना है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ध्यान नाल समझने की कोशिश करनी है गाइज। ठीक है, आंसर याद रखने की कोशिश करनी है। तो किहड़ी सीगी साडी सिटी? हाँ जी गाइज, नैक्सट चलते हैं गाइज क्वेश्चन ते। हु वॉन दी बहरान ग्रांड प्रिक्स 2019? हाँ जी गाइज, 7th का सही आंसर देने की कोशिश करो, 7th क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो। यस, सही आंसर है दा लेविस हैमिल्टन। ठीक है गाइज, ये दसना इसका कि बहरीन कोई मतलब कोई कंट्री है दैन उहदे ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जिहड़ा किन्नू मिलिया है? लेविस हैमिल्टन नू। ठीक है, तो जिहड़ा हुंदा है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है, तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो जेकर तुहानूं पता है। तो किहदे रिलेटेड हुंदा है गाइज? हॉलीवुड अवार्ड्स है ना, जिवें कि डायरैक्टर नूं मिलदा है, बेस्ट एक्टर नूं, बेस्ट डायरैक्टर नूं, इवें ही। ठीक है, नैक्सट चलते हैं। 5-time वर्ल्ड चैंपियन लेविस हैमिल्टन वॉन दी बहरामन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, इन्होंने 5 बार की किया वर्ल्ड चैंपियन लेविस मतलब जोड़ा अवार्ड है लिया है। ठीक है, 5 टाइम्स। ठीक है, नैक्सट चलते हैं गाइज। विच टीम वॉन द सुल्तान अजलान शाह कप? ठीक है, सही आंसर देने की कोशिश करो 8th का। जैस, सही आंसर है गाइज साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने की किया है सुल्तान अजलान शाह कप जितया है। ठीक है, तुसीं हुण मैनूं कमेंट करके दसो कि किस दे रिलेटेड हुंदा है वाला कप। यस, नैक्सट चलते हैं, थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन दस दिंदी हां मैं। इंडिया हैज़ लॉस्ट टू साउथ कोरिया इन द फाइनल ऑफ सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूरनामेंट। तुहानूं पता चल गया होएगा कि सुल्तान अजलान शाह कप किहदे रिलेटेड सीगा? हॉकी टूरनामेंट दे। ठीक है, ठीक है, in the Malaysia and Malaysia has secured the 3rd place. मनप्रीत सिंह was the captain of the Indian hockey team। ठीक है, हॉकी द टीम का कैप्टन कौन सीगा? मनप्रीत सिंह। एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट जापान stood the 5th place of the cup and the shooting sport community. They have been rising the performance war every day the ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। ठीक है गाइज, ध्यान नाल पढ़नियां ने गल्लां जो भी लिखियां हुई ने बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, क्योंकि एक क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज, नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड बाय 6 months एंड एम्बेगो ऑन वेपन्स एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरबिया? 10th क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो गाइज। यस, तुसी दसना है कि किहड़ी कंट्री नूं मतलब जिहड़े आपां एक कंट्री एक्सपोर्ट का मतलब की हुंदा है? एक्सपोर्ट निर्यात है ना, आयात निर्यात सुनिया होएगा हिंदी विच जां है ना, अपने देश तो बाहर चीज़ां भेजनियां उधरों दी मंगवानियां चीज़ां है ना, इनू कह दिंदे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो गाइज तुसी दसना है किहड़ी कंट्री है, 10th का सही आंसर देने की कोशिश करो, किहड़ी कंट्री है जिहड़ा कि मतलब एक्सटेंड किया गया उहदे विच जिहड़ा मतलब पाबंदी लगाई गई है कि 6 month दी होर कि आपां जिहड़े हथियार बनाते हैं उहदे विच सऊदी अरबिया विच। ठीक है, ऑन दी वेपन एक्सपोर्ट टू सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया च आपां 6 month लई होर आपां एक पाबंदी लगा दी गई, उत्थे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है गाइज जर्मनी। सही आंसर है जर्मनी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हैं। जर्मनी हैज़ एक्सटेंडेड बाय 6 months ऑफ एम्बेर्गो
ठीक है, पाबंदी लगाई गई है ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਪਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ 'ਚ 6 ਮੰਥ ਲਈ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਡ ਇਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਈ 6 ਮੰਥ ਫਰੋਮ ਮਾਰਚ 31 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 30 2019 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾइस, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸ਼ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਦੀ ਵੈਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਈ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰਸ of commerce and industry। yes guys, 9th क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो guys। माफ़ी चाहती हैं कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए ने कॉपी पेस्ट करते टाइम, लिखते टाइम, ठीक है। 9th एंड 10th क्वेश्चन नाल कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है गाइज। yes, सही आंसर देने की कोशिश करो। तेरा सही आंसर की होगा? 9th का सही आंसर की होगा गाइज? 9th का सही आंसर की होगा गाइज? यस, सही आंसर देने की कोशिश करो 9th का। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ दी इंडिया, ठीक है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ दी इंडिया, ठीक है गाइज। तो ये क्या गया है कि सानू किहड़ा अवार्ड नाल किया गया? वेस्ट स्पोर्ट द फेडरेशन का अवार्ड, ठीक है, नैशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ दी इंडिया, जोड़ा कि एसोसिएशन चैंबर ऑफ दी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री च जा जाता है, ठीक है। देखो ये एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हैं। दी नैशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI अवार्ड वाज द बेस्ट स्पोर्ट फेडरेशन अवार्ड इन दी कंट्री बाय द एसोसिएशन चैंबर ऑफ दी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द इनअदर फैदर, ठीक है। नैक्सट चलते हैं गाइस क्वेश्चन ते। विच सिटी होस्टेड दी 60th मीटिंग ऑफ कैनेडा इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कंट्री ऑन काउंटर टेररिज्म, ठीक है। 11th क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस, जेकर तुहानू पता है तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर की है गाइस? होस्ट करना मतलब आप उस सिटी का नाम दसना जिहदे होस्ट की गई है 60th मीटिंग ऑफ कैनेडा एंड इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ काउंटर टेररिज्म दी, ठीक है। तो यदा सही आंसर क्या होगा गाइस? टेररिज्म का मतलब की होंदा एक दहशत, है ना। इस वर्ड का मतलब की होंदा एक दहशतवाद, है ना। तो तुसी जल्दी तो जल्दी मैनू दसो 60th मीटिंग किहड़ी सिटी विच होस्ट की गई अगर तुहानू पता है तो? यस, सही आंसर की होगा 11th का ओटावा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे हैं दी। The 60th meeting of the Canada-India Joint Working Group of the Counter-Terrorism and its expert subgroup held on the Ottawa to provide a detailed briefing on their respective nation counter-terrorism priorities, strategy and legislative framework. The meeting has reviewed the threats posed by terrorist group worldwide and their respective countries and region, ठीक है guys। next question पे चलते हैं। The government has again extended its deadline to impose retaliatory custom duties on US products including almond, walnut and pulses till 2 May 2019। हाँ जी गाइज, सरकार मतलब दसना है तुसी कि जिहड़ी तरीक सीगी जिहड़े मतलब स्टिल एक्सटेंड की हुई सीगी कि आपां डेडलाइन कोई है ना गौरमेंट के द्वारा कोई प्रोडक्ट जिमें कि US विच आपां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते होंगे कोई प्रोडक्ट जिमें कि कुछ एलमंड, बैलनट, पल्सिस, है ना, कुछ दालां, बदाम जो कोई अखरोट इदां दे, है ना। तो ये दसना है कि तुसी किन्ने प्रोडक्टां ते जिहड़ी एक डेडलाइन सीगी इंपोज की हुई है उहदे बारे दसना है, ठीक है। सरकार द्वारा अपनी समा सीमा जिहड़ी वधा दित्ती गई सी उहदे बारे दसना है कि जिहड़े कस्टम ड्यूटी लगाओ तो अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट है जिमें कि उहदे बारे दसना है कि तुसी किन्ने प्रोडक्टां ते कीती गई है। तो दैन इहदा आंसर होगा गाइस, सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस, सही आंसर देने की कोशिश करो 29। सही आंसर है 29 प्रोडक्ट।
The government has again extended its deadline to impose the retaliatory custom duties on the 29 US products, including almond, walnut, pulses, to May 2019. Government of India decided to impose these duties related to move by the US to impose high custom duties on the certain steel, aluminum product. ठीक है, India export to the US in 2018 to 17 to 18 stood at USD 47.9 बिलियन। ठीक है, ठीक है, US ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਸਿਸ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 25 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जिन्हों किया जाता CDAC, C फॉर सेंटर। ठीक है, DAC स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, विल होस्ट 2-day टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव ऑन 4th and 5th अप्रैल 2019। हाँ जी गाइस, तुसीं दसना है कि 2019 4 ਤੇ 5 2 दिन साडी IT ਦੀ ਕੋਈ मतलब CDAC ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੋਸਟ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਾइस। 13 ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਯੈਸ, ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਾइस ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੌਨਕਲੇਵ ਲੱਗੀ ਹੈ 4th and 5th ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, CDAC ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਾइस, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC विल होस्ट 2-day टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव ऑन दी 4th and 5th अप्रैल 2019 पुणे। ठीक है गाइस, ये की दसिया गया है एक्सेस स्किल्स कंप्यूटिंग, माइक्रो प्रोसैसर, कंटेंट कंप्यूटिंग, AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी दे एंड लैंगुएज कंप्यूटिंग के बारे दसिया गया होएगा इस लैब। ठीक है, जी 2 days की साड़ी मीटिंग कंडक्ट की गई सी। ठीक है, CDAC इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द नैशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है गाइस, ध्यान नाल पढ़ लैनियां ने सारे एक्सप्लेनेशन। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। अर्थ आर 2019 ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द विच डेट। तुसी डेट दसनी है कि ਜਿਹੜਾ अर्थ आ रहा है 2019 ਨੂੰ ਕਦੋਂ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਗਾइस, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ अर्थ आर डे रखा जाता है हर साल। ठीक है, उस दिन की किया जाता है गाइस, एक्सप्लेनेशन च पढ़ांगे। सही आंसर देने की कोशिश करो। यस, 14th क्वेश्चन का सही आंसर है मार्च 30th मार्च। ठीक है, नैक्सट चलते हैं एक्सप्लेनेशन च। बहुत ही इंटरस्टिंग करंट अफेयर है गाइस। द अर्थ आवर 2019 वाज ऑब्जर्व ऑन दी 30 मार्च 2019। ठीक है, इस साल की 30 मार्च ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया अर्थ आवर। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ गाइस, ਇਹ मतलब एक ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ 30th एडिशन है अर्थ आवर ਦਾ। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ गाइस, जिन्हें वर्ल्ड वाइड ਦੇ सिटीज़ है उन्होंने ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, टर्न ऑफ किया गया 1 घंटे ਲਈ। किन्ने ਲਈ? 1 घंटे ਲਈ, ताकि इदा का कैंपेन है गाइस जिहदे विच की किया जाता है कनैक्ट टू अर्थ एंड इट वाज एम टू बिल्डिंग। इनू क्यों किया जाता है कि इहदा एम हुंदा कि बिल्डिंग ए मास अवेयरनेस ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ नेचर एंड क्रिएट ए अनस्पॉटेबल मूवमेंट फॉर नेचर सिमिलर टू वैन द वर्ल्ड केम टुगैदर टू टैकल क्लाइमेट चेंज। ठीक है गाइस, इनू इसलिए रखा जाता है पूरे देश भर विच 1 घंटे लिए आपां की करते हैं मतलब लाइट्स नूं की कर देंगे ने, टर्न ऑफ करते हैं गाइस। दा टाइम होंदा जिवें कि 8:30 PM तो लैके 9:30 PM तक। ठीक है, ठीक है गाइस, 1 घंटे लिए सारे घरां दीयां लाइटां नूं, सारे मतलब जिन्ने बिल हुंदे ने साडे 1 घंटे लिए आपां लाइट्स नूं की कर दिंदे ने, बंद कर दिंदे ने। इट वाज एम, दा एम की एक बिल्डिंग करना, एक मास अवेयरनेस करना, एक कादे रिलेटेड इंपोर्टेंस टू नेचर। ठीक है, जिहदे विच सानू वैन द वर्ल्ड केम टुगैदर टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, जिन्नियां भी साडी क्लाइमेट दी चेंजिस हुंदियां ने एनवायरनमेंट नूं ध्यान विच रखे हुए। ठीक है, कि साडी जिहड़ी कई अहमियत है एक लाइट दी। ठीक है, इनू अवेयर किया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं।
Which state is celebrating its foundation on the 1st April 2019? हाँ जी गाइस, सही आंसर देने की कोशिश करो। 5 ऑप्शन ने, सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस। यस, which is celebrating its foundation on 1st April 2019? हाँ जी, तेरा सही आंसर की होगा 15 का सही आंसर है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा। ठीक है गाइस, 15वें का सही आंसर है ए, ओडिशा। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हैं। ओडिशा इज सेलिब्रेटिंग दी 84th ईयर of its foundation in the 1st April 2019. The day is also known as Utkal Divas. इनू की किया जाता है? उत्कल दिवस। Earlier Odisha was a part of Bihar. It is become the part state of the form in the linguistic basis of 1936. The name of the state was changed from ओडिशा, इनू ओडिशा किया जाता सीगा, दैन इनू ओडिशा किया जाता है। हुण नेम ऑफ इट्स लैंग्वेज ओरिया टू ओडिया इन 2011। ठीक है गाइस, ये भी एक फैक्ट ने कि इवें भी पूछा जा सकता है कि पहले का पुराना नाम की सीगा। ठीक है, दी लैंग्वेज जिहड़ी की है ओरिया तो की बन गई ओडिया। ठीक है, कदों किया गया? 2011 विच। नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं। 16th क्वेश्चन है अज का गाइस, ध्यान नाल पढ़ना है गाइस। 5 ऑप्शन दिते ने। The World Autism Awareness Day was observed across the world on what date every year with an aim to raise awareness about autism throughout the world? Yes, 16 क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करो। विश्व का ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, जिमें कि हर साल है ना, इसका एक टीचा होंदा है। ठीक है, कि इसनू ऑटिज्म हर सारी दुनिया विच ऑटिज्म अवेयरनेस के बारे दसना, जागरूक करना कि साडे लिए वर्ड ऑटिज्म अवेयरनेस के बारे दसना सारे अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है, तो तुसीं दसना है किहड़ी डेट नू मनाया गया, इहदा एम की सीगा अवेयर करने का। दैन सही आंसर की है गाइस 16 क्वेश्चन का सही आंसर 2 अप्रैल। 2 अप्रैल नू मनाया गया। देखो एक्सप्लेनेशन देखो की लिखा होया। The World Autism Awareness Day was observed across the world 2 April every year with an aim to raise awareness to autism throughout the world. The theme of the year is assistive technology, active participations. ठीक है गाइस, ऑटिज्म जिहड़ा डे मनाया गया, ठीक है 2 अप्रैल नू मनाया गया। ठीक है, हर साल मनाया जाता है तो यदा अवेयरनेस किया जाता है कि बारे ऑटिज्म बारे। ठीक है, तो यदा थीम होंदा है जिहड़ा आपां कोई मनाते नहीं, कोई फैसटिवल या कोई है ना, तो वह एक थीम होंदा है। थीम भी पूछा जा सकता है गाइस, तो भी पूछा जा सकता है कि कदों मनाया गया। तो 2 अप्रैल नू याद रखना है। तो यदा थीम की सीगा? असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशंस। द डे वाज ऑब्जर्व इन 2007 बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री stated that the goods and service tax collected what amount in March? सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस। सब तो पहला तो मैंने कमेंट करके दसो साडे फाइनेंस मिनिस्टर किहड़े ने। ठीक है, ठीक है, सही आंसर देने की कोशिश करो। 7 बहुत ही ईजी है गाइस। 7 क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो। 17 क्वेश्चन का आंसर की होगा, कमेंट करके जल्दी जल्दी दसो। यस, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁड्स एंड सर्विस GST ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, टैक्स लगाया गया है, ਉਹਦੇ थ्रू आप अमाउंट कितनी कलैक्ट की है मार्च विच, ਤੁਸੀਂ ਇਹ दसना है। तो सही आंसर की है 1 करोड़ 6 लाख। ठीक है, सही आंसर है 1 करोड़ 6 लाख। दैन चलते हैं, थोड़ा जिहा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे हैं जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटेड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलैक्शन स्टूड 1 करोड़ 6 लाख in the March, recording the highest ever monthly collection since GST launch। जिमें कि तुहानू पता ही है GST की है, गुड्स एंड सर्विस ते टैक्स लगता है। ठीक है,
ਇਹਦੇ ਸਲੈਬਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ % ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ GST ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ 75.95 ਲੱਖ GSTR 3V returns were filed for February up to 31st March against the 73.8 lakh to month ago. This is the fourth time the collection across the 1 lakh crore to faces ठीक है। फिजिकल क्या कहा जाता है गाइज फाइनेंशियल ईयर ਨੂੰ टोटल gross GST revenue collected in the March 2019 rupees ठीक है। ਸੈਂਟਰ GST ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੈਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਬੋਰੋਜ਼ ਵਾਈ ਨੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ NBFC and microfinance institutions MFIs at what percentage for the first quarter of the next fiscal ठीक है। फिजिकल जिमें कि हुणे दसिया मैं फाइनैंशियल ईयर वित्त साल नूं किया जाता है ठीक है। हाँ जी गाइज तो ये 18th क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो। 18th क्वेश्चन दी ऑप्शन देख लो 5 ऑप्शन दिते ने सही आंसर देने की कोशिश करो। ਇਹਦਾ सही आंसर है 9.21% ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬੋਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ 18th ਦਾ ਯੈਸ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 9.21% ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੈਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ which IT companies consulting arm in going to buy 75% equity stake in starter and B a subsidies of Dutch based AN guys ਇੱਥੇ AN ਜਿਹੜਾ 19th क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक कर लो AVN एमरो बैंक आएगा ਇਹਦਾ ਨਾਮ ठीक है स्टाक ठीक है। तो सही आंसर देने की कोशिश करो कि ਕਿਹੜਾ IT कंपनीज हैं जिन्होंने कॉन्सल्टेंट किया है कि जिमें कि सबसाइडरीज ਹੁੰਦਾ एक सहायक कंपनी ठीक है सही ਇਹਦਾ देख लो सबसाइडरीज ਹੁੰਦੀ एक सहायक कंपनी इक्विटी ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है गाइस किसी चीज़ की वैल्यू स्टॉक ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड देखने ने कंसल्टेंसी दी सलाह मशवरा ठीक है गाइस। तेरा सही आंसर की है 19th क्वेश्चन का सही आंसर की है गाइस डी इन्फोसिस ठीक है। आगे चलते हैं देखते हैं कि लिखे हुआ एक्सप्लेनेशन लिखा है ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर इन्फोसिस स्टेट दैट द कंसल्टेंटिंग आर्म वुड बाय 75% equity stock in the starter NV subsidiary in the Dutch based AVN AMRO Bank rupees 99 crores ठीक है 999 करोड़ ਦਾ मतलब $144 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ AVN AMRO ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡੱਚ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਥਰਡ बैंक बन चुकिया है ठीक है लार्जेस्ट थर्ड बैंक बन चुकिया है ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस
who took over as the new national president of Confederations of Real Estate Developers Association of India, SREDAI, कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डिवेलपर एसोसीएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जोड़ा कि साडा 20 क्वेश्चन पढ़ रही है मैं गाइज अज की सीरीज़ का 20th क्वेश्चन देख लो। इसका सही आंसर की होएगा सतीश मर्ग, सतीश मगर। ठीक है, सतीश मगर। ठीक है, हु टुक ओवर द न्यू नैशनल प्रेजिडेंट, जोड़ा ये वाली एसोसीएशन है कोई कॉन्फेडरेशन ऑफ द रियल इस्टेट डिवेलपर एसोसीएशन ऑफ इंडिया है, इसका न्यू नैशनल प्रेजिडेंट किन्नू टुक ओवर मतलब किन्नू किया गया है, सतीश मगर नू। ठीक है, देख लो ये एक्सप्लेनेशन। सतीश मगर टुक ओवर एज द न्यू नेशनल प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द पेक्स बॉडी ऑफ द प्राइवेट रियल इस्टेट डेवलपर्स इन इंडिया। मैगर हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मगरपत्ता सिटी टुक ओवर द बैटन फ्रॉम ग्लेसिजा, बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ 20-year-old बॉडी। ठीक है गाइज, यदि बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो ध्यान नाल पढ़नी है। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु टुक ओवर चार्ज एज CEO ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, जिन्हों कहा जाता है गाइज। सही आंसर देने की कोशिश करो 21st का, तो यदा सही आंसर है मनु सॉनवे। ठीक है गाइज, नवा चार्ज किनू दे दिता गया CEO का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, मनु सॉनवे नू। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हैं। मनु सॉनवे ओरिजिनली फ्रॉम द न्यू दिल्ली, कितों के ने न्यू दिल्ली के ने। टुक ओवर द CEO ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ही हैज़ बीन वर्किंग अलॉन्ग साइड द आउटगोइंग CEO दाविद Richardson of the last 6 weeks to ensure smooth transitions of the organization. Richardson will remain with the ICC until July. Originally planned to oversee the delivery of the ICC men to 50 over World Cup in the England from the May July. ठीक है गाइस, तो हमेशा याद रखना है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ICC ਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨੂ ਸੋਨਵੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਸ। ਔਨ ਵਿਚ ਡਿਡ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੰਸਟਰਕਟਸ ਮੈਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਈਵਰ ਟੂ ਲਿੰਕ ਵਿਲੇਜ ਇਨ ਲੇ। ਹਾਂਜੀ, 22 क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस, बहुत ही ईजी है। सही आंसर की होगा इसका, सही आंसर देख लो। यस, इंदस। ठीक है, देखो ये की क्या गया 22 क्वेश्चन कि कहते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ आर्मी फोर्स ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੈਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਈਵਰ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਵਿਲੇਜ ਨਾਲ ਇਨ ਦੀ ਲੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ मतलब ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੰਦਸ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ, ਇੰਦਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, the bridge is constructed over the Indus River at the Chogalmasar in the Leh is the longest suspension bridge over the Indus River. The army undertook the task of building the Maitri bridge on the Indus River. बस इतना याद रखना है गाइस तुसी। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कितना ਇਹਦਾ मतलब किन्नी longest है, 260 feet cable suspension bridge which is built in the using the engineer methods longest suspension bridge over the Indus River. ठीक है, लेह लद्दाख तो सुनिया होगा, उत्थे एक विलेज होएगा। ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ एक मतलब उस नदी ते एक ब्रिज तैयार किया गया है। ठीक है, तो वो किहड़ी नदी है, इंदस। ठीक है, बस ये याद रखना तुसी। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं 23rd। रिलायंस म्यूचुअल फंड कस्टमर पार्टनर्स विद विच कंपनी टू लॉन्च वॉइस बेस्ड ट्रांजैक्शंस। बहुत ईजी गाइज, जेकर तुहानूं पता होएगा तो 23rd आंसर देने की कोशिश करो। स्टेटमेंट को ध्यान नाल समझो पहले की लिखा है, तो सही आंसर है गूगल। ठीक है, रिलायंस म्यूचुअल फंड ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कस्टमर ने उन्होंने की किया, पार्टनर्स बने ने, किस कंपनी के पार्टनर बने ने जिन्हें कि कुछ न्यू फीचर दे लॉन्च किया है
कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੌਇਸ ਬੇਸਡ। ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਵੌਇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੌਇਸ ਬੇਸਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Customer of Reliance Mutual Fund can now carry out voice-based financial transaction with Reliance Nippon Life Asset Management, partnering with the internet major Google। केड़ी कंपनी, गूगल। ठीक है, with this RNAM, Nippon Life Asset Management, become the first company of the India to provide a conversational interface that would help to customer regarding fund and transactions। ठीक है गाइस, इन्ना याद रखना है। किहड़ी कंपनी सीगी, गूगल, जिन्हां ने की कीता, वॉइस बेस्ड ट्रांजैक्शन नू लॉन्च किया है। नैक्सट चलते हैं गाइज, नैक्सट क्वेश्चन है अज दा 24th। विच कंट्री लॉन्च्ड दी फर्स्ट ऑफ इट्स न्यू जनरेशन डाटा रिले सैटेलाइट एज पार्ट ऑफ preparatory work for the nation's next manned space mission। हाँ जी गाइज, 24 का सही आंसर देने की कोशिश करो। गाइज तुसी दसनी है कि किहड़ी कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया है हुणे नवे पड़ाव का एक डाटा रिले सैटेलाइट। ठीक है, जी शुरुआत विच आपां की करते हैं। ठीक है, सही आंसर देने की कोशिश करो 24 का। सही आंसर है गाइज चाइना। सही आंसर की है गाइज, चाइना। ठीक है, देखो पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन। China launched the first and the new generation data relay satellite as the part of the preparatory work for the nation of the next manned space mission। ठीक है, चाइना ने की किया है गाइज, न्यू जनरेशन का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जोड़ा की करता है, डाटा रिले सैटेलाइट है जिन्हों कहा गया है कादे लिए यूज़ किया, प्रेपरेटिव वर्क वास्ते नैशन की नैक्सट मैनड स्पेस मिशन ਲਈ। ठीक है गाइज, तो ये दस्या होया है गाइज सारा सैटेलाइट बारे तुसीं पढ़ लेना है। हुण spacecraft in the first China second generation of data relay satellite, adding the entry into service with the substantially improve the country space based data relay capability। next question ते चलते हैं 25th question as the with which country did India sign 3 MOU। जिमें कि मैं तुहानूं पहले दस चुकी हाँ MOU का की मतलब हुंदा है, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। ठीक है, एक एग्रीमेंट होंदा है, एक समझौता होंदा है। ठीक है, तुसीं दसना है कि किहड़ी कंट्री नाल इंडिया ने समझौता किया, फील्ड ऑफ द माइनिंग कल्चर एंड इंपावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब की होंदा है गाइज, डिसेबिलिटी होंदी अपाजिज जिहड़े लोग चल फिर नहीं सकते इदां, है ना, उन्हां दे थ्रू, है ना, डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है, जिमें कि बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, है ना। 25 का आंसर का सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस, इसका सही आंसर है चिली। ठीक है, किहड़े देश नाल कीता समझौता, चिली नाल। ठीक है, नैक्सट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हैं दी। इंडिया एंड चिली साइंड 3 मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ द माइनिंग कल्चर इंपावरमेंट ऑफ परसन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, साडे जिहड़े प्रेजिडेंट ने कोविंद अराइव्ड हिज चिली ऑन द 3-day विजिट ऑन द लास्ट लैग ऑफ द 3 नेशन आवर नेशन टूर। ठीक है, उन्होंने की किया है, साडे जिहड़े प्रेजिडेंट ने कोविंद, ठीक है, इन्होंने 3 दिन का इत्थे की किया है, 3 दिन का नेशन टूर लगाया है। ठीक है, कि इस समझौते लिए किहड़े-किहड़े लिए, माइनिंग कल्चर इंपावरमेंट। माइनिंग की होंदा है, जिहड़ियां खन होंदियां ने, खनन, कल्चर सभ्याचारिक, है ना कोई, दैन इंपावरमेंट जिवें तुहानूं पता ही है शक्तिकरण। ठीक है, इस खेत्र विच की कीता है, जिहड़े अपाहिज लोग ने उन्हां दे समझौते लिए कोई मतलब एक की लगाया गया है, देख लो क्वेश्चन देख लो ध्यान नाल फिर तो, एक साइन किया उन्होंने मैमोरेंडम कि इस कंट्री के जोड़े फील्ड के लोग ने की कर सकन एक। ठीक है, नैक्सट चलते हैं, विच टीम विद ICC टेस्ट चैंपियनशिप मैच फॉर 3rd straight year get 1
डॉलर मिलियन। ठीक है 26 का सही आंसर देने की कोशिश करो। मैच का मतलब होंगे ग्रेस। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ICC ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੈਚ 3rd ਸਟੇਟ ਏਅਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗਾइस। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। 26 ਦਾ ਸਹੀ ਆंसर इंडिया। सही आंसर की है इंडिया। डिस्क्रिप्शन देख लेंगे हैं। इंडिया हैज़ won the ICC Test Championship match of the 3rd year in the row after the finishing of the top of the ICC Test team rankings. India have also awarded कितना कैश प्राइज मिलिया इन्हों $1 मिलियंस। न्यूजीलैंड हुआ द रैंक सैकेंड वाले नूं कितना मिलिया है। ठीक है चेक कर लियो गाइस इन्हों का पॉइंट किन्ने ने 108 पॉइंट्स एंड 8 बिहाइंड ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। फेमस परसनैलिटी जे महिंद्रन पास्ट ही इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड ਜਿਹੜੇ कि ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ मतलब जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा जे महिंद्रा साढ़े 27 क्वेश्चन का सही आंसर देखो। पहले स्टेटमेंट देखो ध्यान नाल की लिखिया है। जे महिंद्रा ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ मतलब ਹੁਣੇ गुजरे ने 2 अप्रैल 2019 ਨੂੰ। ठीक है एक ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ फेमस परसनैलिटी ਸੀਗੀ। ठीक है ये बारे दसना है कि तुसी ਕਿਹੜੀ इंडस्ट्री ਕਿਹੜੇ फील्ड नाल रिलेटेड ਸੀਗੇ। 27 क्वेश्चन का सही आंसर दो ਸੀਗੇ फिल्म डायरैक्शन नाल। ठीक है देख लो थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हैं। जे महिंद्रा इज द पासिस अवे इन द 19 ठीक है इन्होंने मतलब इन्होंने कोई फिल्म की सी ये वाली 1980 विच 3 नैशनल फिल्म अवार्ड मिले ने इन्हों। ठीक है कुछ फिल्मां इन्होंने तमिल विच भी कीतियां होणगियां। ठीक है ध्यान नाल देख लियो सारा। दैन चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते 28th इलैक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया हैज अपॉइंटेड होम द सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर फॉर द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। 28th क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस। इसका सही आंसर है के शर्मा। देखो पहले क्वेश्चन कहते कि भारतीय चोण कमीशन ने जिहड़ा ने नियुक्त किया है आंध्र प्रदेश ठीक है तो तेलंगाना लई केंद्रीय पुलिस ऑब्जर्वर। ठीक है तो उन्होंने नाम तुसीं दसना सीगा। उहदा नाम सीगा मिस्टर के शर्मा श्री के शर्मा। ठीक है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दी किनू अपॉइंटेड किया है गाइस श्री के शर्मा नूं जिहड़े कि की रह चुके ने IPS 1982 के रिटायर्ड DG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विच उन्होंने काम चुके हैं उत्थे दे रिटायर रह चुके हैं है ना। नैक्सट चलते हैं। कंधमाल हल्दीवास अर्न दी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया इट इज़ ए वैरायटी ऑफ इंडिजीनियस टर्मरिक ऑफ विच स्टेट। जिमें कि तुहानूं पता ही है हल्दी जिहड़ी साडी टर्मरिक हुंदी है। ठीक है साडे लई इक की हुंदी है बहुत ही ज़्यादा। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन इसका सही आंसर पहले मैं दे दी हाँ कि 29 का सही आंसर देने की कोशिश करो तुसी फटाफट। यस जल्दी तो जल्दी। इसका सही आंसर है गाइस ओडिशा। ठीक है सही आंसर है ओडिशा। ठीक है तुसी दसना है कि ग्राफिकल इंडिकेशन का की बन चुकी है एक इंटैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया बन चुकी है जिदे के थ्रू आप ज़्यादा तो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं क्योंकि वैरायटी ऑफ कि वैरायटी है कंधमाल हल्दी। ठीक है तो देख लेंगे हैं। कंधमाल हल्दी इज़ द वैरायटी ऑफ द टर्मरिक इंडिकेशन द साउथर्न ओडिशा इट इज़ अर्न द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस GI टैग इंटैक्चुअल प्रॉपर्टीज़ द जिमें कि तुहानूं पता ही है। ठीक है उत्कल दिवस जिहड़ा मनाया गया जिमें कि मैं लास्ट क्वेश्चन विच भी डिस्कस किया सीगा उत्कल किया सीगा क्वेश्चन विच डिस्कस। ठीक है कित्थे मनाया गया सीगा ओडिशा। ठीक है जिहड़ी दी यूनीक इज़ वैरायटी किहड़ी है टर्मरिक दी कंधमाल हल्दी। ठीक है जिमें कि तुहानूं पता ही है हल्दी दे मल्टी फेस ने यूटिलाइज ने इनू आपां फूड विच यूज़ कर दे सकते एज ए मैडिसिन एज ए कॉस्मैटिक। ठीक है एक कंसीडर किया गया कि यूनीक कलर एंड यूनीक फूड आइटम है जी कि वेरीअस की है कोजनियस। ठीक है कोजनियस है। दैन चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड दी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया टैग अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA फॉर द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर हाउ मैनी मोर मंथ्स। ठीक है 30 क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करो की होगा
आंसर है 6। आंसर है ਇਹਦਾ 6। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 6 ਮੰਥ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ 6। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। The center extend the distributed area tag on the Air Force Special Power Act for the 3 district Arunachal Pradesh of the another 6 months. The decision was taken after consider the present law and order situation in the 6 district of the state. The 3 district which will continue to designated the distributed area the under the AFSPA are the Tribe and Chalanga and the Learning, and the designation which allow imposing the SOA also continue the 4 police stations area of the state, 3 other district and bordering Assam। ठीक है गाइज, तो जोड़ा अगला ये अपना जोड़ा अरुणाचल प्रदेश है इनू किन्ने मंथ ਲਈ और एक्सटेंड किया गया है कि खराब खेतर है, मतलब कि डिस्टर्बड एरिया है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर बोल रही सी मैं, डिस्टर्बर एरिया है किन्ने ਲਈ किया गया है 6 मंथ ਲਈ। गाइज ये याद रखना है। ठीक है, ਕਿਹੜੇ एक्ट के थ्रू किया गया गाइज ASFPA एक्ट के थ्रू। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इज गोइंग टू levy charges on UPI transaction like Paytm, Google Pay, Phone Pay from 1st May to 1st May 2019। सही आंसर दसो ये गाइस की होगा 31 का सही आंसर है कोटक महिंद्रा। ठीक है, जिमें कि तुहानू पता है आप पेटीएम वगैरह जिन्ने भी भीम ऐप है इहदे थ्रू आप ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं। लेकिन जिहड़ा साडा प्राइवेट सैक्टर जिहड़ा कोटक महिंद्रा बैंक है इन्होंने की किया चार्जिस लगाना स्टार्ट किए ने यूपीआई जिन्नी भी आप ट्रांजैक्शन करांगे जेकर तुसी उस कोटक महिंद्रा बैंक नाल बैंक के अकाउंट विच हो तो तुहाडा की पेगा तुहानू चार्ज पै सकता है। जिवें कि पता देखो इन्होंने जिवें कि लिखिया है फ्रॉम द 1st May 2019 कोटक महिंद्रा वाल चार्ज फॉर UPI का मतलब होंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन। UPI was the leading the contributor of the digital payments push since demonetization for the each bank count first 30 UPI fund transaction will be continue free। जेकर तुसी 30 ट्रांजैक्शन करते हो ट्रांसफर करते हो जो भी करते हो दैन वो तुहाडे लई फ्री होणगियां एवरी मंथ, बट चार्ज विल भी काउंट ट्रांजैक्शन किन्ने तो चार्ज स्टार्ट होएगा गाइज। The charge 2.50 per transaction per below is equal to 1000 एक मिनट guys, हाँ 1000 and above the 1000 transaction will be applicable for all the fund transaction transfer done the by UPI Kotak Mahindra account will include the payment apps and the ਕਿਹੜੇ ऐप ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। ठीक है, जेकर तुहाडा अकाउंट कहदे च है कोटक महिंद्रा विच है दैन तुहानू की होगा ट्रांजैक्शन करन ते 30 मतलब इन्नी किन्नियां ट्रांजैक्शनां करन तो बाद 30 फर्स्ट 30 ट्रांजैक्शनां ते तुहाडियां फ्री होणगियां दैन उस तो बाद की पेगा तुहानू चार्ज पैना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, नैक्सट चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते फॉर अप्रोक्सीमेटली वट अमाउंट डिड दी BNP Paribas card if the foreign partner of SBI Insurance sold 5 crore share of the company। 32 का सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस। सही आंसर है दा 2900 करोड़। ठीक है, देखो जिहड़ा कि साडा BNP जिहड़ा मतलब एक की है परिवास कार्ड है। ठीक है, जोड़े फॉरन पार्टनर ने SBI लाइफ इंश्योरेंस ने उन्होंने की किया है कि शेयर 5 करोड़ का जी कंपनी है दसना है कि तुसी एप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट लगभग BIPN इंश्योरेंस के जोड़े विदेशी सभ्यकार परिवास कार्ड ने
कंपनी के 5 करोड़ शेयरां नूं बेच के कितना अमाउंट वो किया अप्रोक्सीमेटली वो दस्सिया कितना 5 करोड़ आप जिहड़े शेयर है उन्होंने की किया सोल्ड किया उन्होंने बेचिया है तो उन्होंने कितना मतलब कितना अमाउंट बनया है 2900 करोड़। ठीक है, थोड़ा जिहा एक्सप्लेनेशन देख लेंदे हैं। BNP Paribas Card if the foreign partner of SBI Life Insurance sold a 5 crore शेयर्स ते द कंपनी ऑफ द रुपीज़ कितना बनया है 29 लैख अप्रॉक्सीमेट दस रहा है। ठीक है, 2900 करोड़। ठीक है, 2889 करोड़। दी सेल वाज डन एवरेज प्राइस कितना है 577.93 पर इक्विटी वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैज़ bought 2 crore shares at the average price of the 577.50 per share as per the regulatory filing। ठीक है गाइस, तुसीं कुछ पॉइंट्स ने जिहड़े कि बहुत इंपोर्टेंट ने पढ़ लेने ने। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। इन दी रिसेंटली रिलीज परफॉर्मेंस ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स नैचुरल गैस प्रोडक्शन ग्रू बाय वट परसेंटेज। 5 ऑप्शन ने गाइस, सही आंसर देने की कोशिश करो। हुण जी रिसेंटली रिलीज़ हुई है परफॉर्मेंस कोर ऑफ इंडस्ट्री इंडेक्स नैचुरल गैस की प्रोडक्शन दसनी है तो कितनी ग्रो हुई है, कितने परसेंट ग्रो हुई है गाइस। हाल ही जारी जिहड़े किए गए प्रदर्शन का कोर है जिहड़ा इंडस्ट्री इंडेक्स है नैचुरल गैस का उत्पादन है कितना परसेंट होया गाइस, ये दसना है तुसीं। 33 का सही आंसर दैट इज़ 2.5। दैट इज़ कितना आंसर है इहदा 2.5। नैक्सट चलते हैं। द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री स्टूड एट द 125.8 फरवरी कदों किया गया गाइस इंडेक्स कोर द फरवरी 2019 विच। ठीक है, इंडिकेट द मार्जिनल ऑफ द इंक्रीज 2.1% ड्यूरिंग द मंथ। द 8 कोर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनर प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलैक्ट्रीसिटी, रिस्पोंसिबल जिन्ने भी मतलब ये ने इन्हां ते की किया गया है गाइस, एक हाल विच जारी किया गया है की किया गया इंडस्ट्रीयल इंडेक्स नैचुरल गैस का उत्पादन का कितना परसेंट ग्रो किया गया। ठीक है, नीचे दिते ने जिवें कोल प्रोडक्शन ते कितना होया है 7.3। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन ते कितना होया है कितना रिकॉर्ड है 17.92%। नैचुरल गैस के प्रोडक्शन कितना होया है 3.8। फर्टिलाइजर सैक्टर ते 2.2 2.5। सीमेंट प्रोडक्शन ते इट ग्रो द 8%। ठीक है, इलैक्ट्रीसिटी प्रोडक्शन 0.7। ठीक है, फॉलिंग मतलब ये गिरिया है तो इसका ग्रोथ कितनी है 4.6। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड कोयल ठीक है ये रिकॉर्ड कितना है -6.1%। रिफाइनरी प्रोडक्ट का कितना रिकॉर्ड है -0.8%। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI to begin stock broking service to let its user buy share through the platform। तुसी कंपनी का नाम दसना है जिहदे थ्रू की किया गया है कि रिसीव किया गया अप्रूवल। ठीक है, जिहड़ी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया है। ठीक है, इस सर्विस नूं की करती है यूजर नूं वे जिहड़ा इदां दा प्लेटफॉर्म शेयर करती है जिहदे यूजर की कर सकते हैं खरीद सकते हैं शेयर्स नूं। 34 का सही आंसर देने की कोशिश करो दैट इज़ पेटीएम। ठीक है, नैक्सट चलते हैं, थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे यदि। Alibaba backed Paytm subsidiary Paytm Money has received approval for the Security Exchange Board of India to begin stock broking service to let the user buy share through the platform। किदे थ्रू Paytm दे थ्रू ब्रोकिंग दी सर्विस allow to investor to trade of in the cash segment। ठीक है, तो गाइस तुसी पढ़ लेना सारा। नैक्सट चलते हैं अज दे सैशन का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। नेम ऑफ द Algeria president who has resigned after weeks of mass protests। ठीक है, सही आंसर देने की कोशिश करो। 5 ऑप्शन ने गाइस, ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़ के सही आंसर देने की कोशिश करो गाइस। ये तुहाडे लई होमवर्क है गाइस, तुसीं मैनूं कमेंट करके फटाफट दसो इसदा सही आंसर की है।
ठीक है। तो ਇਹਦਾ मैं सही आंसर नैक्सट वीडियो ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗਾइज ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਗਾइज।